Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics with Tilkate Shri Jyoti Educational Group Kota. In today's class, we are going to talk about Indian economic development and taking a revision of chapter number 6, that is rural development. So here we go with the meaning of rural development. Before beginning this topic, we should know what is the actual meaning of rural. Basically, whenever the term rural is used, only one thing strikes in mind, that we are talking about the village area. But it is nothing like that. Rural area basically belongs to that particular area where there is lack of facilities. And in the basic facilities we can say related to education, health, dispensaries, water supply, electricity supply, these things are not available there. So that particular area is known as rural area. Now we can say that villages are included under the term rural area. Is it clear, children? Why we are going to develop this type of area? ऐसे एरिया को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? As you know that India is a developing country. और डेवलप जो होगा बेटा, डेवलपमेंट जो होगा वो ओवरऑल पूरी कंट्री का होगा, हर एक पर्टिकुलर एरिया का किया जाता है. तो जब सिटी एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है तो रूरल एरियाज को क्यों छोड़े बेटा? क्यों ना इसी तरह की फैसिलिटीज हम वहां भी अवेलेबल करवाएं, बिकॉज वी हैव राइट टू इक्वालिटी. तो जो रूरल पीपल हैं जो वहां एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी तो इस तरह की फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो here you can see it is a comprehensive term which essentially focuses on action of the development of area which is lagging behind in overall development of village economy. Basically talking about that village economy, that is rural economy, जो कि lag behind कर रही है. In what manner? In the availability of facilities and all. Next is objective of rural development. Why do you want to start the development in rural area? क्यों करना है हमें development? क्या इसकी requirement हो सकती है? So the first is increasing productivity of agricultural sector. As you know that the most developed occupation in the rural area is agriculture. Isn't this agriculture सबसे ज्यादा होता है बेटा वहां पे. अब जब हमें ये भी पता है कि agriculture सबसे ज्यादा rural area में है, तो एटलीस्ट वहां पे फैसिलिटीज तो अवेलेबल हो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. अब वो एजुकेशन को भी कवर करेगा. वो क्यों? क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर वर्क में एनरोल्ड हैं, डोंट यू फील दैट दे पीपल आल्सो रिक्वायर द एजुकेशन, दे कैन बी लिटरेट. और जब एजुकेशन पे सर्वे फर्दर किए जाएंगे, इन पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तभी तुम्हारी कंट्री डेवलप हो सकती है. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप है या एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर है, वहां पे हमें उस एरिया का डेवलपमेंट करना जरूरी होगा. पॉइंट नंबर 2 इज जनरेटिंग अल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया. Being in rural area doesn't mean that the people will be only farmers. It is nothing like that. They can go through some another or allied activities also. The activities those are non-farm activities. वो भी कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रूरल एरिया में रहना तो इट मींस एग्रीकल्चर ही करना है, सिर्फ खेती पे ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं बेटा. तो उसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे ऐसे स्कोप होते हैं लाइवलीहुड को गेन करने के, लेकिन जब तक वो इस तरह का स्कोप अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा तब तक वहां का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं. जैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टार्ट की जा सकती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती है, जहां पे कुछ लोग मिलकर इजी गोइंग अपना कुछ गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड दे कैन सप्लाई द प्रोडक्ट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. Point number 3, promoting education and health facilities in the rural area. As I told you, everybody is having right to equality. So being in village area, they also require the facilities of health and education. Basically आज भी देखा जाता है बेटा, अगर ईयर वाइज कुछ ऐसा इंस्पेक्ट करें कि एवरी ईयर रूरल एरिया में जो भी डेथ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं या जितने भी डेथ केसेस होते हैं, उनका एक रीजन ये भी होता है कि वहां पे गुड हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. और रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक मूव करते वक्त ही कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है इफ दे विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन देयर ओन एरिया itself. ओके, नेक्स्ट कम्स की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट. दैट ऑल वर द ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, बट की इश्यूज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है रूरल एरिया के डेवलपमेंट में. सो द फर्स्ट इज a robust
system of rural credit. Basically, we know that people, those who are surviving in the rural area, they are not having sufficient amount, they are not too rich to fulfill their all requirements related to their occupation, related to their personal expenditures and all. So in that situation, they people require to borrow the money from money lenders and all. But the thing is that money lenders, they try to exploit such type of needy people. Many people are there, those who can give the loans and borrowings from banks, some non-banking institutions as well, but they are not aware about the formalities, legal formalities which are required here. So due to these all the things, we can say that development is not possible because people are not getting the credit, they are not financially too strong, and they are not even able to get the credit facilities over there. Point number 2, a system of marketing that ensures remunerative price to the farmer and his produce. What are they saying? A system of marketing. Marketing system refers to what? Basically, they are having the one thing, what? Agriculture sector. Okay, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो बेटा मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ऑलरेडी चैप्टर में वैसे पढ़ चुके इसके एक्सपेंडेड वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए बताया था वेयर दिस व्हाट द पीपल वांट और व्हाट आई कैन सी फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अ प्रोसेस beginning from the primary step that is cultivation to final sell. कल्टीवेशन से लेकर के फाइनल सेल तक के बीच में जितने भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन सबको कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तो कुछ ऐसे ही है जहां पे कि अपने प्रोडक्ट को सेल सप्लाई करने के लिए अच्छी मार्केट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड वहां पे अपडेट्स नहीं होते हैं, अपग्रेड्स नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटा हर जगह होना जरूरी है, such as electricity, irrigation, transportation facilities and etc. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है डोमेस्टिक यूजेस में भी, प्लस अगर जैसे मैंने भी आपको बताया इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जा सकता है तो इंडस्ट्रीज को भी रन आउट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. डोमेस्टिक यूजेस में चाहिए, एग्रीकल्चर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटलीस्ट ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हो. इरिगेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें इरिगेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उससे रिलेटेड पक्का रोड और व्हीकल्स एंड ऑल की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक लेके आने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये सारी चीजें हम अवेलेबल उतनी नहीं है जितनी कि हमें चाहिए होती है. Next is diversification of production activity. Diversification of production activity. Production activity में हम कुछ diversification कर सकते हैं, diversities को include कर सकते हैं. मतलब जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्रॉपिंग जिस भी तरह से की जा रही है, इसको कुछ क्रॉपिंग मेथड में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ जो क्रॉप्स करें उनके साथ कौन से कॉम्बिनेशंस को हम यूज में ले सकते हैं so that production increase हो. As we know that rapidly population is increasing in our country, so as soon as demand is increasing of the products, we need to equalize the supply of the same products. हमें उनकी सप्लाई भी उतनी करनी पड़ेगी, isn't it? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज का, जो कि अभी भी काफी सारे रूरल एरियाज में, काफी सारे रिमोट एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. ऑन ए सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो कि लैंड रिफॉर्म्स जो हमारी कंट्री में बेटा ऑनेस्टली आज भी इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, हमारे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1, 2, 3 में हमने काफी बार इन चीजों को पढ़ा है कि लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए हुए थे वैसे तो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस चीज में करप्शन इंप्लीमेंट है, करप्शन का हाथ है, और इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स को ऑनेस्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है. इस वजह से जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्पेशली बात करें, उसका एग्जैक्ट हमें 100% डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है. नेक्स्ट आते हैं रूरल क्रेडिट. अभी जो हमने टर्म पढ़ा बेटा, फर्स्ट पॉइंट था रूरल क्रेडिट. सो व्हाट इज मींट बाय रूरल क्रेडिट? ऑलरेडी आई टोल्ड यू द टर्म इज क्रेडिट. और क्रेडिट क्या होता है? टेकिंग बॉरोइंग्स फ्रॉम अदर पीपल टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. हमें जो भी काम है, जिस भी तरह की जरूरत है, उन जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्रेडिट की. अब रूरल एरिया में लिया जा रहा है, इसलिए इसको हमने कह दिया रूरल क्रेडिट. तो रूरल एरिया में बेटा क्रेडिट किस लिए चाहिए होगा? बेसिकली वहां का जो मोस्ट डोमिनेंट ऑक्यूपेशन दैट इज एग्रीकल्चर.
उसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है इसकी। फार्मर्स का कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर भी तो होता है, ठीक है, अपना घर का खर्चा चलाने, कोई मैरिज है, कोई भी फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, उसमें उनको रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की। उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जहां पे कि बेटा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, आई मीन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट एग्रीकल्चर बेटा एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसको कि हम गैम्बलिंग ऑफ मॉनसून भी कहते हैं, मतलब मानसून का जुआ कहा जाता है। वो क्यों? अगर मॉनसून फेवरेबल होगा सो मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, और अगर मॉनसून फेवरेबल नहीं रहा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जीरो भी हो सकता है। तो अगर ऐसे सेक्टर में कोई पर्सन अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और रिटर्न अगर नहीं आता है उससे, तो सोचिए बेटा उसकी कंडीशन कैसी होगी। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अमाउंट भी अगर किसी से बॉर्डिंग्स कर रखी है, तो लोन पे लिया हुआ है, तो क्या सिचुएशन होगी। तो इन चीजों के लिए वहां पे कुछ दो तरह के सोर्सेज की अवेलेबिलिटी करवाई गई है इंडिया में। द वन इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड द अनदर इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जहां पे कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जो मनी लेंडर्स होते हैं या लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो स्मॉल स्केल फार्मर्स को अपना अमाउंट लोन पे दे दिया करते हैं। मनी लेंडर्स जिनका काम ही होता है, जिनको सेठ साहूकार भी कहा जाता है, वो लोग कई बार ऐसा अमाउंट अपना लोन पे दे देते हैं। बट हाँ, उस लोन को लेने के बाद में जितने भी फार्मर्स वो एक तरह से डेट ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कौन सा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो क्या देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार फार्मर का फंस जाता है बेटा, तो वो इजी गोइंग डेट ट्रैप होता जाता है, वो कभी भी उस लोन को रिकवर नहीं करवा पाता है। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो बेसिकली वहां पे है, तो सही अवेलेबिलिटी तो है इनकी, लेकिन इन चीजों की वजह से फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। बट गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स के बिहाफ पे काफी सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को भी स्टार्ट किया है, जिसमें आपको यहां दिख रहा है दीज आर बैंक्स। तो बैंक्स की अवेलेबिलिटी नाबार्ड को स्टार्ट किया गया, जिसका काम ही क्या है बेटा, नेशनल लेवल पे रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वो लोन प्रोवाइड करवाता है, सिंपल फॉर्मेलिटीज के साथ में, सिंपल इंटरेस्ट पे और मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आरआरबीज होते हैं बेटा, रीजनल रूरल बैंक, जो कि रीजन वाइज होते हैं, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारी कंट्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है बेटा? अभी मैंने आपको बताया, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा लॉन्ग स्पैन ड्यूरेशन के अंदर ये होता है जिसमें कि प्रोडक्ट के कल्टीवेशन से लेकर के फाइनल सेलिंग तक जितने भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उन सभी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जैसे कल्टीवेशन हुआ, सबसे पहले फिर उसमें इरिगेशन वगैरह प्रोवाइड करवाया गया, फाइनली एक ड्यूरेशन के बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है, उसका ग्रेडिंग होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, पैकिंग एंड ऑल, यार्ड्स में उनको स्टोर करना, फिर प्राइस अच्छी मिलने पर उनको मार्केट में सेल सप्लाई करना, सैंपलिंग वगैरह करना उनका, ये सारी चीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती है और बहुत जरूरी भी है। बट इंडिया में काफी सारे आज भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। डिफेक्ट्स, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कुछ एरिया में है भी सही, तो वहां पे कुछ डिफेक्ट्स हैं इसके। क्या क्या है? फर्स्ट इज इनएडुकेट वेयर हाउसेस। वेयर हाउस से जहां पे कि प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, फार्मर अपना कल्टीवेशन करके फाइनली हार्वेस्टिंग करता है प्रोडक्ट का। हार्वेस्टिंग के बाद अगर उसको लगता है कि मार्केट में प्राइस अच्छा मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो वो उसको वहां पे उसी टाइम पे सप्लाई कर देता है। बट इफ ही थिंक्स दैट और ही गेट्स इन द फोरकास्टिंग, उसको लगता है कि प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो क्यों ना प्रॉफिट को गेन किया जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ड्यूरेबल भी होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, गोडाउन चाहिए होते हैं। हर एक फार्मर इतना रिच नहीं होता है, हर एक फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कुछ गोडाउन्स को हायर कर सके या परचेज कर सके। इस वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहीं ना कहीं पे लैग बिहाइंड करती है। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपलिसिटी ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन, फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से कि ठीक है मेरा जितना प्रोडक्शन होगा मैं आपको सेल कर दूंगा, वो फर्दर जाके किसी और को करेगा, वो फर्दर किसी और को करेगा। एक तरह से ब्रोकर्स का काम कर रहे हैं बीच में, एक एजेंट कह सकते हैं, कमीशन गेन कर रहे हैं बीच में। और फार्मर को मार्केट में प्रोडक्ट की जितनी प्राइस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। वो क्यों? क्योंकि जितने भी मीडिएटर्स हैं या एजेंट्स हैं वो अपना भी बीच में प्रॉफिट, अपना भी कमीशन इंक्लूड करके चलते हैं। फार्मर चाहे तो प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर सकता है,
मार्केट में जाके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेयर हाउसेस अवेलेबल नहीं है, तो कम पैसे में कम दाम पे उन्हें अपने प्रोडक्ट को कुछ लोगों को सेल सप्लाई करना पड़ता है, दोज आर नोन एज मिडिलमैन। ओके, नेक्स्ट आता है मार्केट प्रैक्टिसेस इन अनरेगुलेटेड मार्केट्स। कुछ ऐसे मार्केट जो कि रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, मार्केट्स की अवेलेबिलिटी नहीं, जैसे पहले मैंने आपको बताया बेटा कुछ एरियाज है जहां पे कि अपने कुछ अलग अलग ऐसे मार्केट्स को स्टार्ट किया गया, अपनी मंडी संडीज करके कुछ ऐसे नाम है, अलग अलग एरिया में स्टार्ट किया गया इनको, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रीजन्स में स्टार्ट किया जहां पे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। बट अभी भी देखा जाए तो हर एक एरिया में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, दैट इज क्रेडिट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को अभी भी नहीं है, क्योंकि जितने भी मीडिएटर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पे फार्मर्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। या वी कैन से दैट कि जितने भी लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, दोज हु आर गुड एट देयर लिटरेसी लेवल आल्सो, फॉर्मेलिटीज को जानते हैं, वो इजी को अपना लोन पास करवा लेते हैं, फाइनेंशियल एड ले लेते हैं बाय गवर्नमेंट। बट कुछ पुअर फार्मर्स, पुअर इन स्टडीज एज वेल, इन एजुकेशन एज वेल, तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिन्हें फॉर्मेलिटीज नहीं पता होती या फिर फॉर्मेलिटीज कर ही नहीं पाते, तो उनको लोन की फैसिलिटीज या फाइनेंशियल एड्स बाय गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं हो पाती है। Inadequate needs of transport and communication, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हर एक फार्मर के पास जरूरी नहीं है कि उसकी खुद का ट्रैक्टर हो, खुद की ट्रॉली हो, या कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो जो कि अपने प्रोडक्ट को रूरल एरिया से लेकर के अर्बन एरिया में कुछ मार्केट्स में, मंडीज में लेके आए जहां पे उनको सेल सप्लाई करे। नहीं होता सबके पास बेटा, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें लोअर प्राइसेस पे अपने लोकल मार्केट्स में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। इट इज देयर ओन कंपल्शन एक्चुअली, उनकी कंपल्शन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि कम पैसे में बेचना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। या रही बात कम्युनिकेशन के बारे में, कुछ रिमोट एरिया से जहां पे कि किसी तरह का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है कि जहां पे फार्मर्स को यह बताया जाए कि करंटली प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, सो दैट फार्मर्स वहां से कैसे भी करके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज करके अर्बन एरिया तक अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकें, या जो भी नियर बाय मार्केट से वहां तक अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा सके ताकि उनको प्रॉफिट गेन हो सके। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कहीं पे नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, कहीं पे फार्मर्स को इतना नॉलेज नहीं है उनको इस चीजों की कि ऐसा भी हो सकता है क्या, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो एरियाज होते हैं कुछ रिमोट एरिया जहां पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। Then the next comes measures adopted by government to improve marketing system. ये कुछ की इश्यूज थे हमारे जो हमने डिस्कस किए, जो की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इंडियंस, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसमें काफी सारे अपने वाइटल रोल्स को प्ले किया है, काफी हेल्प की है, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज वी नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, तो गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट तो करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट, जहां पे मार्केट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर पे फार्मर वेलफेयर के लिए काफी सारे मार्केट्स को स्टार्ट करवाया है जहां पे कि फार्मर्स इजीली अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनसे प्रोडक्ट को परचेज करती है और फिर फर्दर इनको सेल एंड सप्लाई करती है। प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग आपने पढ़ा बेटा क्लास 11 में मार्केट इक्विलिब्रियम में, जहां पे गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की प्राइस खुद ही डिसाइड करती है, कुछ नेसेसरी गुड्स होते हैं ताकि बायर एंड सेलर दोनों का ही वेलफेयर हो सके। पॉइंट नंबर 2, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, काफी सारी सोसाइटीज को स्टार्ट किया कोऑपरेटिव लेवल पे जहां पे कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग वहां पे उनकी हो सकती है एट द चीपर प्राइसेस, उनका एक्सपेंडिचर कम होगा लेकिन उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पे उनको सब्सिडीज प्रोवाइड हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर उस पर भी सब्सिडी दे दी जाती है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को स्टार्ट किया जहां पे कि फार्मर्स इजीली अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, जो मैंने आपको बताया कुछ फार्मर्स के पास अपने खुद के यार्ड्स नहीं होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को रख नहीं सकते, गोडाउन्स नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, एरिया वाइज डिपेंड करता बेटा सब कुछ, इनको सेफ विद ऑल द सेफ्टी ऐसे वेयर हाउसेस प्रोवाइड करवाती है, गोडाउन्स प्रोवाइड करवाती है जहां पे कि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल सेफ रहता है। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जो मैंने भी आपको ऊपर क्लियर किया है कि काफी सारी सोसाइटीज हैं और गवर्नमेंट भी फार्मर्स को एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडीज देती है
जहां पे 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर होता है, मे बी इनको 65 पे करना पड़ता होगा, मे बी इनको 45 रुपीज पे करना पड़ता होगा। इट इज समथिंग लाइक दैट, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है। नेक्स्ट इट कम्स डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। Diversification basically it is having two aspects. The one is diversification of crop production and another is diversification of productive activities. दोनों देखने से बेटा आपको सेम लग रहा है बट बोथ आर डिफरेंट। क्या कहा है पॉइंट नंबर 1 में? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हम जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कुछ ऐसा किया जाए जहां पे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता है जहां पे एक ही पर्टिकुलर लैंड पे एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हम करते हैं एंड वी फाइंड दैट कि हमें वहां से प्रोडक्शन कुछ ज्यादा गेन हो पाएगा। जिसमें मैंने आपको अगर याद हो तो बेटा पहले भी एग्जांपल दिया था मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, वहां से बेसिकली इस चीज के एविडेंस मिला था कि हम एक ही पर्टिकुलर लैंड पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली दो क्रॉपिंग्स एक साथ कर सकते हैं एंड वी कैन गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल्सो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये पैटर्न्स हम कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करें, कुछ ऐसी टेक्निक्स को, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उनको भी कुछ चेंज किया जाए, मींस उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर भी हम कुछ और अलग सेक्टर्स में जा सकते हैं, कुछ अलाइड एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज हो। जैसे कैटल्स एंड ऑल होता है, बताया मैंने आपको पहले भी, इसके अंदर हम कैटल्स रख सकते हैं ताकि उनसे जितना भी वेस्ट होगा उसके हम डबल यूजेस कर सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक लेवल पर उससे बायोगैस जनरेट कर सकते हैं और उससे भी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एग्रीकल्चर में यूज आ सकता है, और एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो हमारा कैटल्स के लिए यूज में आ सकता है। तो ये वाइस वर्सा, ये साइक्लिकल कंडीशन है, हमें लॉस कुछ नहीं है, जबकि इससे हमारी एक इनकम जनरेट इजीली हो सकती है, क्योंकि कैटल्स रखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन होगा और उससे हम एक ऑपरेशन फ्लड भी कर सकते हैं, जो कि कहां हुआ था बेटा? गुजरात में हुआ था। Here you can see this is related to operation flood, जो कि गुजरात में हुआ था। That is related to, I mean we can say that this program is devoted for the maximum production of milk. डेयरी सिस्टम्स को डेवलप किया, मिल्क का मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारे कैटल्स को रखा गया, एनिमल हस्बेंड्री, उनके काफी अच्छी ब्रीड्स को जनरेट किया गया ताकि जितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना ही हमारा अर्निंग सोर्स भी जनरेट होगा। क्योंकि मैंने भी आपको बताया बेटा एग्रीकल्चर में तो क्या होता है, एक बार इन्वेस्ट किया, आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स हमें कुछ रिटर्न मिल पाता है। और जो मैंने आपसे बात की दैट इज व्हाट? गैम्बलिंग ऑफ मॉनसून। अगर मॉनसून फेवरेबल नहीं हुआ तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता उसके अंदर। लेकिन ये जो कैटल सिस्टम है या फिर जो एनिमल हस्बेंड्रीज है, इनसे फार्मर्स को डेली बेसिस पे इनकम रिसीव हो सकती है, तो वो अपना एक साइड वर्क हम कह सकते हैं या फिर एक लाइवलीहुड गेन करने का एक अच्छा तरीका है। सच एज हॉर्टिकल्चर इज देयर, जहां पे कि हम फ्लावर्स का या फिर वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनको भी मार्केट में डेली बेसिस पे सप्लाई करें, सो वी कैन गेट द इनकम फ्रॉम देयर आल्सो। Here we can get non-farm sector, कुछ ऐसा सेक्टर, कुछ ऐसी टेक्निक जहां से कि हम नॉन फार्म बेसिस पे भी इनकम को गेन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी देयर, कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी देयर, कुछ स्मॉल लेवल पे एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करना, स्मॉल लेवल बिजनेस को स्टार्ट करना रूरल एरिया में रह करके, ताकि एग्रीकल्चर के अलावा, फार्म एक्टिविटीज के अलावा भी हम कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज परफॉर्म करें और लाइवलीहुड वहां से जनरेट हो सकता है। Labor intensive process. Basically we know that nowadays ज्यादातर जो हमारा कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए मॉडर्नाइजेशन काफी ज्यादा हो गया, इस वजह से हम मशीन टेक्निक्स का ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हम कुछ लेबर इंटेंसिव पे जाते दैट इज उनकी प्रोडक्शन तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इस बेसिस पे लोगों को ऑक्यूपेशन गेन हो जाएगा। जहां पे कि एक मशीन काम कर रही है, अगर उस मशीन को हटा दिया जाए वहां से, तो हो सकता है रिप्लेस करने पे वहां पे 10 वर्कर्स को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं वहां पे। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल एफर्ट हो सकता है, जहां पे कि हम क्या कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज्यादा यूज मिले ताकि वहां पे रहने वाले लोगों को उस लोकल एरिया में ही इजिली ऑक्यूपेशन या फिर लाइवलीहुड गेन हो सकता है। So dear students, this was all about the chapter number 6, that is rural development of Indian economic development. Hope so everything is clear to you all. So this is all about today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.